अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। पंजाब असम्बली में आज बजट मंजूर होने जा रहा है जी, अगले 3 माह का, यानी 1 अप्रैल से लेकर जून तक का बजट अप्रूव होने जा रहा है। और ये उस 4,480 प्लस अरब में से ही बाकी 3 माह का जो बकाया जात का बजट रहता था वो आज मंजूर होने जा रहा है। अब इस बजट में आवाम की बेहतरी के लिए और तरक्याती कामों के लिए क्या होगा, या आवाम क्या सोचते हैं कि इस 3 माह के बजट में आवाम को क्या एक उम्मीद की किरण मजीद नज़र आएगी और मिल भी पाएगी, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। एक खातून अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं मेरी बहन? ये बच्चा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अजलान। अजलान बोलता है? हाँ जी। अजलान कैसे हो बेटा? नहीं अभी नहीं बोले भाई, ये मैं कह रही हूँ ये राशन के जो थैले हैं ऐसे लोगों को जो जलील कर रहे हैं, आराम से देना, सब औरतों को दें। 2 मरतबा आया नहीं दिए। अच्छा। जो दूसरे पैसे मिलने हैं उसके भी 2000 रुपया लेके दे रहे हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट? हाँ 2000 रुपया लेके। आपकी रजिस्ट्रेशन है इनकम सपोर्ट? हुई है। तो आपके एरिया में गाड़ी आई है वो तकसीम करने? मैं आई हूँ, नहीं दिया इन लोगों ने। निकेमान पैकेज वाली? हाँ जी नहीं दिया। क्या कहा आगे से? वो कह रहे नहीं आया। नहीं चेक खत्म हो गया या आपका वो स्कैन किया, कह रहे नहीं आ रहे, आपका नहीं आया। अच्छा आपका नहीं आ रहा? हाँ जी। तो पहले मिलते रोड पे गाड़ी आई, वहाँ नहीं उन लोगों ने दिया। मतलब आपका इस रमजान में भी एक दफ़ा भी नहीं मिला? अभी नहीं मिला। आज गाड़ी आई थी? हाँ जी, अभी वो इधर खड़ी हुई है। ऐसे ना भाई लोगों को जलील कर रहे हैं। मरियम नवाज ने तो इतने बड़े वादे किए, अब वादे पूरे करे ना। क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक है? ठीक ठाक। क्यों तुम आते वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? नहीं गल की करनी, कोई गल निकल जाती है। ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ यार नहीं पिंड वाले करते, मैं- जान वाले ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ठीक मुड़े इलाहाबाद। ठीक मोड़? ठीक मोड़ वाले हमारे सारे जो शहरी हैं भाईजान, वो मेहरबानी करें इस भाई को अपने गांव से ना निकालना। अगर इसके मुंह से कोई गलत बाल निकल आए तो इसको अपने गांव से ना निकालना, ठीक है जी? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਆਬ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ। ਉਸ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? अपनी बेहतरी वास्ते की हो सकता कुछ भी ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੇ ਖਜਲਵਾਰੀ। देख रहे हैं ਆਟੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਦਰਖਾਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਲਿਓ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 12,000 ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ? ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਵੈਸੇ ਬਿਹਤਰੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਨ ਤਾਂ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 25 ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 30 ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਤਾਂ 12 ਦੇਖੋ ਨਾਨ ਨਾ, ਦੇਈਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਸਨ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ? 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਲੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਬਾਜੀ 11,000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 12,500 ਦੀ ਬੋਰੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੇਖੋ 25 ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ 30 ਦਾ। ਅਸੀਂ 130 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਨ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ 25 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 120 ਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ 25 ਦਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਣ। ਜਿਹਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 2 ਨਾਨ ਖਾਣੇ ਨੇ, 2 ਨਾਨ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, 12 ਨਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 2 ਨਾਨ ਖਾਣ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਚੰਗਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੇਣ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨ ਨਾ ਲਈਓ। ਹਾਂਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਠੀਕ ਹੈ? 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ 30 ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਦੱਸਣ ਰਹੇਗੀ? ਜੀ ਜੀ ਕੁਲਚਾ ਤੇ 30 ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਨ ਸਾदा नान 5 रुपए का होना चाहिए। हाँ सादा 5 रुपये। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और मज़ीद शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अवाम में एक और सीन है जी, जहाँ पे अभी मैं आया हुआ हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पे नहीं माँ जी नहीं ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ?
ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਬੇਵਾ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੋਟ ਆਂਦੇ ਪਾਓ ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕਾ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੇਵਾ ਆਵੇ 10 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਂ ਨੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੱਤ ਪਰਚੀ ਇਹ ਦੋ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਤੇ ਆ ਪਰਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਂਝ ਘੁੰਮਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਆਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ बस गल है पुत्र अल्लाह खैर करेगा हमारी अल्लाह खैर करेगा ये जी मैं इन खातून के पास वालेकुम अस्सलाम जी मैं इन खातून के पास इस वजह से गया था जी कि जब अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे मोस्टली उस तरह के लोग रहते हैं मैं ये कहने लगा था कि जिनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि बजट के मकासद क्या होते हैं बजट कब दिया जाता है और बजट कैसे इस्तेमाल किन पे इस्तेमाल होना चाहिए और किन पे होता है बजट के बारे में मालूमात नहीं यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं मैं ये कहने लगा था लेकिन दरम्यान में खातून बोल बैठी जब मैंने कहा यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं खातून बोल पड़ी कि जो भूखे हैं तो मैं इस वजह से उनके पास गया था और उन्होंने इस वजह से कहा जो भूखे हैं यानी कि जो डिज़र्विंग हैं जिनको ज़रूरत है ये हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ मिल रहा है इसकी जो पैकेजेस मिल रहे हैं इसकी ज़रूरत है वो यहाँ पे वो आवाम रहते हैं लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा सर क्या हाल है ठीक हो वालेकुम अस्सलाम से तबीयत ठीक है जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की करते हो बस दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करी दी मजदूरी वगैरह करी ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬਜਟ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟ ਜੀ ਲਾਈਏ ਜੀ ਨਾਹਲ ਜੀ ਨਾਹਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ 50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ 10-12 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ सिस्टम ये जी जो हुकूमत की तरफ से आटा दिया जा रहा है उसकी क्या सूरत हाल है ये आपने शहरी के मुताबिक सुन ली है अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है वेलकम बैक जी वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद मैं अभी इस ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था जो आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पे मोस्टली वो लोग हैं जिनको एक्चुअली पता ही नहीं है बजट के बारे में और अगर पता भी है तो उन्हें ये मालूम नहीं है कि उस बजट में अवाम की बेहतरी के लिए भी कुछ अनासर होते हैं या नहीं होते हैं अवाम की बेहतरी भी उस बजट से की जा सकती है या नहीं की जा सकती है खैर एक और ये हमारे बड़े प्यारे से भाई हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान का महीना है चटपटे से रोल समोसे फ्राई कर रहे हैं निकाल रहे हैं सर क्या हाल है खैरियत से शुक्र अल्लाह पाक का सेहत भी ठीक है शुक्र अल्लाह पाक काम शाम सही चल रहा है रोज़ों में हो रही है आमदन शामदन सही कि नहीं जी अल्लाह पाक का शुक्र है हो रहा है गुजारा जी अच्छा मुझे ये बताएं वोट किसे दिया था आपने वोट हमने किसी को भी नहीं दिया क्या वजह वोट दे के क्या करना है हमने वोट देकर सर हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है ना ये हम पे फ़र्ज़ है ये अमानत है हमारे पास जो हमने अदा करनी होती है अमानत तो है मगर हमें देखो खाने के लिए तो कोई भी नहीं देता ना हमारी ज़रूरतें जब पूरी ना हो तो हम वोट देने का क्या मकसद है जब हमारी ज़रूरत पूरी हो तो हम वोट दें और ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हमारी ज़रूरत ही नहीं पूरी हो रही तो वोट कैसे दें जैसे कि क्या ज़रूरत मतलब आपको क्या महसूस होता है आपकी क्या ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही जो होनी चाहिए महंगाई इतनी है
इस महंगाई में इंसान क्या करे, कुछ भी खाने के लिए भी नहीं हो तो इंसान के बाद तो कहाँ से गुजारा करे। 4000 इधर बात सुने 4484 इतना ही तकरीबन मैंने बताया था ना, इतने अरब का बजट जो है ना 1 साल का पंजाब का था सूबे का, जिसमें से आज 3 माह का बजट दोबारा अप्रूव होना है। मुस्तफा जौहर रहमान ने अप्रूव करना है मरियम नवाज़ के अंडर, 3 माह का बजट अप्रूव होना है। आपको लगता है उसमें आपकी मेरी आवाम की बेहतरी के लिए भी कुछ होगा? ये तो देखते हैं ना, अभी तो फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा हमें, ये तो देखेंगे जब। रमज़ान में एक हफ्ता तकरीबन रमज़ान को हो गया है, कुछ रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की तरफ से? हमें तो अभी तक कोई भी नहीं मिल रहा। किसी को मिला है? किसी का कुछ भी नहीं कह सकते, अपना कह सकते, हमें अभी तक नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, मतलब हुकूमत ने जनरल पब्लिक की बेहतरी के लिए अभी तक कुछ नहीं किया रमज़ान? नहीं किया। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हजरत क्या हाल है, खैरियत से? सेहत तो भी ठीक है आपकी? हाल चाल तो बताइए ना इधर। अच्छा सर कैसे हैं, खैरियत से? जी कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत ठीक ठाक। सर क्या करते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, बिजली का काम करता हूँ। अच्छा आज बजट अप्रूव होने जा रहा है, आपको आइडिया है उसका? 3 महीने का, अगले 3 महीने का बजट आज अप्रूव। आइडिया क्या हो सकता है, हम तो आवाम जो है ना पिस रही है, मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, इसका कोई हल नहीं निकाल सकी अभी तक। ना पहले गुलजार हुकूमत, ना उसके बाद नकवी हुकूमत, तो ना बीबी आई है। देखें हम क्या कहती है, हमें आसमी तो है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, कुछ हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, हमारी आवाम के हालात बेहतर हों, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन आगे एक मिनट सर, बेटा इनको पीछे करो ना, रास्ता खोलो, रास्ता क्यों बंद किया हुआ तुमने? पीछे करो इनको। अच्छा हाँ जी, तो ये चाहते हैं हम कि जो भी आए, लेकिन वो हमारा सोचे, गरीबों का सोचे। अब देखें कितने कितने बिल आ रहे हैं, सुई गैस हमारे घर आ रही नहीं, हमें सुबह भी प्रॉब्लम, रात को भी प्रॉब्लम, शाम को रोज़े के टाइम। तो बिल मुझे पिछली दफ़ा 8,000 आया, उससे पहले 15-16,000 आया। लेकिन गैस हम वही नॉर्मल सी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स इतने ज़्यादा। लेकिन हम चाहते हैं मरियम नवाज़ साहबा आप हमारी आवाज़ सुने और हमारे पे कोई रहम कर लें तो बेहतर है। वो गैस का बिल जो आप अभी सर 8,000 बता रहे हैं, आपको पता है वो इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा आना है। तकरीबन 70% तो एक दिन में, पिछले दिनों ये कुछ दिन पहले बढ़ी है, 70% फी यूनिट बढ़ा है। फिर सर और मेरा टोटल अगर करें तो पता नहीं कितने 100% यूनिट बढ़ चुके हैं। सर फिर मेरा तो यही मशवरा है कि रोज़ के मरने से हमें एक दफ़ा ही मार दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा एक दफ़ा हिसाब हो जाए, हम जन्नत में चले जाएँ, दोज़ख में चले जाएँ, कम से कम एक जगह पर डिसाइड तो हो जाए ना ऐसे ही है कि हमने जाना कहाँ है। अभी तो फिलहाल डामाडोल, अभी तो फिलहाल जन्नत की अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जन्नत की तस्वीर दिखा के दोज़ख में ही हमें हर 5 साल बाद भेजा जाता है। हालांकि मैं मरियम नवाज़ साहबा मेरी बात सुने, मैं आप से पहले दिखाई जन्नत जाती है। मैं आपके वालिद का, आपके चचा जान का, आप लोगों का फ़ैन हूँ, लेकिन खुदा के लिए इधर थोड़ा आगे जी जी जी, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क पर थोड़ा सा आप रहमत करें, करम करें। गरीब वहाँ बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं। और ये पाकिस्तान में जो कहते हैं ना चोरियाँ हो रही हैं, बिजली चोरी हो रही है, वैसे चोरी हो रही हैं, ये लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, मजबूरी में कर रहे हैं। तो लिहाजा कि कोई ऐसा सोचें हमारे मतलब कि हम ये उठे काम ना करें, कल को हमने मरना है। और गरीबों के मतलब सोचें। मरियम साहबा से यही मेरी दरख्वास्त है, यही अपील है कि मैं आपके वालिद का, आपके चाचा का, आप लोगों का फ़ैन हूँ। मैं कट्टर मुस्लिम लीग का बंदा हूँ, लेकिन हालात ख़राब हो चुके हैं। खुदा के लिए कुछ सोचें। आपको एक दुख की बात बताऊं जी, मैं ना ये प्रोग्राम मेरा चलता है, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर चलता है जी, किसी का भी कोई मसला मसाइल हो मेरे से रब्ता कर ले, मैं नीचे अपना नंबर चलवाता हूँ। उस नंबर पे मुझे कुछ दिन पहले एक बंदे ने रब्ता किया जी। उस बंदे ने कहा कि सर मैं आज अपनी जान देने जा रहा था। मैं जान देने इस वजह से जा रहा था कि मेरे इतने बच्चे हैं, ये मेरे साथ मसले मसाइल हैं और मेरी आमदन कोई नहीं, और पता नहीं कितने अरसे से हम भूखे हैं, कहीं से कोई आमदन नहीं आ रही। हुकूमत से बार बार अपील की गई है, दरख्वास्तें भी हुकूमत को दी हैं और उनको बताया गया, लेकिन ना मेरी कोई मदद नहीं हुई, ना मुझे कोई रोज़गार मिला है और ना ही मुझे वैसे हुकूमत की तरफ से मदद मिली है। उस बंदे ने, मेरे पास अभी भी सारे वो सबूत मौजूद हैं उस बंदे के सारे, उसने मेरे से जो रब्ता किया हुआ है। मैंने उस बंदे से फिर अपने मुताबिक, मेरे मतलब मेरी हैसियत के मुताबिक जितना हो सका मैंने किया, लेकिन वो बंदा अपनी जान देने जा रहा था इस वजह से कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं चाहता हूँ कि इन पर हमने बहुत आसमीद लगाई है कि मुल्क का कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, लेकिन खुदा का वास्ता है कि हमें कुछ करके दिखाएं, हमें ऐसे ना मारें। तो अगर मारना ही तो एक दफ़ा मार दें, हमसे रोज़ रोज़ नहीं मारा जाता। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ तक पहुँचा दें सर, आपकी आवाज़ उन तक पहुँचनी और मैं उनका फ़ैन हूँ। आप अभी उनके फ़ैन हैं अगर सर, तो फिर तो उनको आपकी बात ज़रूर मतलब सुन, मेहरबानी अगर वो सुन ले तो। अगर तो देखें ना जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने वोटर सपोर्टर्स और जो
सालों से वोटर सपोर्टर्स उनके चलते आ रहे हैं, अगर उनके साथ ये सूरत हाल बनी हुई है तो आप ये सोचें जो वोटर सपोर्टर नहीं है, जिनको भी आपने माइल करना है अपनी पार्टी की तरफ और जिनको आपने अपनी गुड साइड, गुड इमेज दिखानी है, उन लोगों के साथ क्या होगा जी। वो एक खातून जो मुझे मिली है, वो भी उनको सिर्फ पता ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था और किसी पार्टी का पता ही नहीं था, और वो खातून भी किस तरह मायूस होके और दिल बुरा करके यहाँ से जा रही थी। सर आप क्या करते हैं जी? मैं सेंट्री का काम करता हूँ। काम है? कोई काम नहीं सर। वो क्यों नहीं है सर, पता है आपको? है ही नहीं काम सर। क्यों नहीं है भला? पता नहीं क्यों नहीं। मैं बताता हूँ। सेंट्री का सामान महंगा हो गया है सबसे पहले, फिर घर बनाने वाले ने ईंट महंगी लेनी, सरिया, बजरी, सीमेंट, रेत, हर चीज़ महंगी। कोई बंदा डरता हाथ ही नहीं डालता इस काम को कि घर बनाए ही ना। अगर वो काम चल रहे थे तो लोगों ने बंद करवा दिए कि हमारे पास पैसा नहीं, काम बंद कर दो। अब लेबर ज़्यादा है, वर्कर ज़्यादा है और काम नहीं है। तो मैं 6 महीने से काम कर रहा था, एक बंदे से साहब मैंने किया 20,000 लेके आया हूँ, 10,000 मैंने रेंट दे दिया, तो 10,000 रुपये एक बच्चे की किताबें और फीस दी है, तो फिर फारग है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करें। 2 बच्चे मैं अपने वैसे स्कूल से उठा लिए हैं, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। पिछली मरतबा मुझे ना बिजली का बिल, आज बजट असेंबली में अप्रूव होने जा रहा है, आपको लगता है उसमें इसके लिए कुछ बेहतरी होगी ऐसे लोगों के लिए जो वाकई आपकी तरह जो पिस रहे हैं इस महंगाई से? 10,000 मेरा रेंट है, 10,000 रुपये गैस का बिल है, 15,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, और अभी और ज़्यादा आने। और कोई एसी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, एक पंखा चल रहा हो, एक मशीन है, वो 2-3। अवाम ने जी सॉरी हुकूमत ने अवाम का ये हाल कर दिया जी, खाली रोड है, एक बंदा या एक चीज़ आगे नहीं है, एक मोटरसाइकिल, एक सवारी आगे नहीं, खाली रोड है, मोटरसाइकिल वाले खड़े टी टी कर रहे हैं, हॉर्न कर रहे हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा या ये मैं सरकाज़म नहीं कोई कर रहा हूँ, ये मैं एक्चुअल हकीकत आपको बता रहा हूँ। अवाम फ्रस्ट्रेट इतना हो चुकी है जी, खाली रोड पे, मतलब 7वां रोज़ा है, हमने फ्रूट नहीं खाया, 7वां रोज़ा हो गया, ना फ्रूट खाया ना चिकन खाया। बस सुबह मैंने उठा हूँ, एक खरबूजा छोटा सा किसी से मिला वो खा लिया, 2 किलो मिले वो खा लिया, रोज़ा रख लिया। अल्लाह सर, अल्लाह आपके रेस में बरकत डालें जी, कारोबार में बरकत करें, अल्लाह इनको हिदायत दीजिए, अल्लाह इनको हिदायत, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और बैठे हुए हैं घर के बाहर ही है, घर ही है जी इनका मेरे ख्याल से, जिसके बाहर बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। हजरत क्या हाल है, ठीक हैं, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं आप? अच्छा, जिंदगी लंघा ली हुन, जो आखिरी रह गई आराम कर दो, सुकून कर दो। चलो ये अच्छी गल है ना, ये सुकून वाली जिंदगी, नमाज पढ़ ली तो शुक्र कर लिया। अच्छा मैनू ये दसो, मुल्क की सूरत हाल जी है, महंगाई जी है, वो तो तुहानू पता ही होना है। महंगाई हुण कह साडा वक्त कुछ भी नहीं सी, साडा वक्त है ना रुपये की चीज़ मिल जाती, हुण रुपये लागे नहीं लगता। हाँ जी बिल्कुल जी। तू आखना 5 रुपये ना, 5 रुपये घ्यो होंदा सी, हुण घ्यो ला कित्थों लभना। हुण 5 रुपये ना बच्चों चो भी किसी को दोगे तो उन्हें नहीं लेने, 10 भी नहीं लेने। साडे दौर च 3.5 रुपये घ्यो भी गया देसी, कणक 10 रुपये माना, हुण कित्थों लावे लियावे कोई बखाने। अज किन्ने दी आटा किन्ने दा है तुहानू पता? आटा बाबा जी इस हिसाब ला ला 150 किलो, सखी साहब आ गया जी। 10 किलो मिलन रहा, कितने का? 1400 रुपये का थैला है ना 10 किलो का? 1400 का। नहीं वो सब्सिडाइज है 1370 वाला, वैसे 1400 ही है। तो ये मसन के इन्नी हर चीज़ महंगी हो गई है। आज हुकूमत ने ना बजट अप्रूव करना है, पंजाब असैम्बली बजट अप्रूव होना है सूबे वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ मेरे सूबे वास्ते, पंजाब वास्ते बजट अप्रूव होना। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता ਤੁਹਾਡੀ मेरी बेहतरी भी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ बजट 'ਚ? करेगी हुकूमत बेहतरी होने तो बहुत मुश्किल है जी, मुश्किल है जो हालात पाकिस्तान से जा रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है हालात। और गल्ला नहीं रह गया, वो कहले वक्त पुराने गए। अच्छा किहड़ी हुकूमत है मुश्किल हालात 'चों कढ़ सकदी ਜਿਹੜੀ पाकिस्तान? सारी हुकूमत ਇੱਕੋ ਹੀ है, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆ। अच्छा हाँ कई खा नहीं, वैसे की लगता कढ़ कौन सकता है? ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? देखो जी ये शुरू तो ही वेख्या, अयूब के वक्त तो वेख्या, जो अयूब आया सी फातिमा जना इलैक्शन जीती तो उन्होंने नहीं होने दिता। इस तरह करते पे ने हुण भी मुल्क के हालात चलते पे। जी सही गल है। तो नहीं वैसे नून लीग कढ़ सकती है मुश्किल हालात? देखो जी कढ़न नूं किहड़ी शै नहीं कढ़ सकते।
ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਯਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਆਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਜੇ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਾਜੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 12 ਰੁਪਏ ਮਣ 12 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। 12 ਰੁਪਏ ਮਨ ਆਪ ਵੇਚੀ। ਕੋਟ ਕੋ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਟ ਦਾ ਪਾਸ ਛੋਟਾ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕੋਟ ਵੇਚਿਆ ਥਈ ਗੁੜ। ਆਹੋ ਗੁੜ ਹੁਣ ਉਹ 10 ਦਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। 10 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ 10 ਰੁਪਏ ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਸੌਣ ਭਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਚੁੱਕ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕਦ ਵਿਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੰਨना है कोई पाकिस्तान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये जी बता रहे हैं बुजुर्ग के 10 रुपए मन यानी 10 रुपए का 40 किलो गुड़ हमने खुद अपने हाथ से फरोख्त किया हुआ है। इन्होंने जो मेरे साथ बैठे हुए 10 रुपए का 40 किलो गुड़ फरोख्त किया है जी। और आज 10 रुपए का एक वो पीस भी आपको गुड़ का नहीं मिलेगा जी। आप पत्तों की मैं गया जी 8 दिन नहीं हुए 300 रुपया किराया लगा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਰੁਪਏ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1.5 रुपया किराया ਹੁੰਦਾ ਸੀ उस वक्त पत्तों जाने का किराया 300 रुपया किराया जी। और जो उसके अलावा जी जो एक बात उन्होंने की है वो वही बात की है जो रमज़ान से 1-1.5 हफ्ता पहले हमने शो किया था। और तब हमने वो शो इस बात पे किया था कि ये मरीम नवाज साहिबा जो निगहबान पैकेज और ये सब्सिडाइज रमज़ान पैकेज देने जा रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन इससे बेहतर ये है कि ये गिराव फरोशी कम करके दुकानों पे ही सस्ते दामों आटा, दालें, चावल, घी हर चीज़ रख दी जाए और आमदन की तरफ तवज्जो दी जाए कि उस आदमी की एक लेमैन की एक लोअर मिडिल क्लास आदमी की आमदन किस तरह बढ़ाई जा सकती है, उसे रोज़गार किस तरह दिया जा सकता है। यहाँ लाइनों में लगवा के धक्के दिलवा के जलील करके सफ़ेद पोश तबके को अगर आप 600 रुपये सस्ता आटा दे रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि आप 600 रुपये महंगा उसे बेशक आटा दे दें लेकिन उसके रोज़गार और उसकी आमदन की तरफ तवज्जो दें। ये आटा नंबर इन्होंने कोल साढ़े लिखा नंबरदार ने साढ़े को नंबरदार और नंबर से आटा नहीं मिल देंगे और नंबर नहीं निकलिया फलाने का वो कौन खाना ऐसे ही जानता। जितने भी इस तरह के ज़ाहिर है जी स्कीमें बनती हैं, जितने भी इस तरह के प्लान्स बनते हैं, उन प्लान्स में उतनी ही ज़्यादा करप्शन भी होती है। ये तो खैर हमारी पाकिस्तानी कौम बहाना ढूंढती है जी करप्शन करने का कोई भी मौका इनको मिले। पर घर ना कार्ड वेकर दिती जाते आटा देंगे से राशन देंगे से हूँ वो भी कोई नहीं हूँ कोई नहीं। कल असी गए सुबह सारे फिर के उन्होंने नंबर नहीं निकले। मैं दसो अल्लाह अल्लाह जी इन्होंने हिदायत दे। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एक जनरल स्टोर किराने की दुकान बनाई हुई है छोटी सी जी, जिसके अंदर इन्होंने ये दालें, चावल और मसाला जात ये चीज़ें भी रखी हुई हैं। मेरे ख्याल से आटा वगैरह भी रखा होगा, ये चीज़ें भी रखी हुई हैं और इसके अलावा बाकी किराने की दुकान भी है जी। हैं कैसे आप खैरियत से? हाँ जी शुक्र अल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो ज़रूरी अशियाँ हैं आम इंसान की रोज़मर्रा की, इनमें आपको कितनी बचत है और वाकई ये पहले से महंगी कितनी हो गई है? दरअसल में ना महंगाई तो सब चीज़ों के साथ ही है। पहले चीज़ें जब सस्ती थी तो अब सस्ती ही मिलती थी। अब जैसे हर चीज़ को फ़र्क पड़ गया था। मुर्गिया गोश्त देख लें, पहले 250-300 का था, अब वो 500-600 तक लोग खा ही रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सब चीज़ों का इसी तरह फ़र्क है और आधो आध का फ़र्क है। ये नहीं है कि हाँ ये नहीं है कि जो है जो पिक्चर पहले चीज़ें अगर 250 की मिली थी आप 150 की, ये नहीं हुआ। पहले से बढ़िया कम नहीं हुई। हाँ नहीं वैसे जो ये अंडे हैं, दालें सालें, ये वो सारा कुछ ये देते डीसी रेट लिस्ट पे ही आप? हाँ ये उसी तरह चलता ही है। डीसी रेट पे ही देते हैं? हाँ जी। लिस्ट है यहाँ कहीं आपके पास? लिस्ट अभी वो भाई इधर है नहीं है, उसके पास है। चलें वो लिस्ट सर रखा करें आपकी बेहतरी के लिए। ये मैं तो समझा ही सकता हूँ। आपके लिए आता हूँ जी, आप भाई हैं मेरे, आपकी बेहतरी के लिए लिस्ट रखा करें, नहीं तो जुर्माना होगा और अब जुर्माने के साथ 3 साल कैद भी है, तो उससे हमने बचना है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये मुझे बताएं, बजट आज अप्रूव होने जा रहा है पंजाब असम्बली में, आपको लगता है हमारी आपकी मेरी बेहतरी के लिए भी उस बजट में कुछ होगा?
देखें ये अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला जो करेंगे अच्छा ही होगा आवाम के लिए। अब सब मिलजुल के लगे हुए कोई ना कोई तो करेंगे ही ना, करेंगे ऐसी। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसको वोट कौन देगा? फिर तो सब लगता है कुछ करेंगे। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। चलें, इनसे नहीं उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह से तो सर वो तो ऐसी शुरू से अल्लाह से ही है, लेकिन अल्लाह ने वसीला इनको बनाया हुआ है ना अभी। नहीं तो वो वसीला कैसा? दरअसल में ना वो ये अल्लाह ने दिल में बात डालनी है तो वो काम होने हैं, वरना नहीं होने। वरना नहीं होने। चलें, अल्लाह करे, यही दुआ करते हैं फिर अल्लाह इनके दिल में डाल दे। बिल्कुल ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह सर। ये आपने क्या खाता खोला भाई जी? ये मैं ऑर्डर लेता हूँ इनसे। अच्छा, सामान वगैरह सप्लाई करते हैं ना। अच्छा, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है। तो सामान वगैरह ये जो आप इनसे लेते हैं या इनको देते हैं वो बच बचा हो रहा है, बचत हो रही है उसमें? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा हो जाता है। क्योंकि महंगाई जितनी ज़्यादा है जी, हर बंदा मुतासिर हो रहा है, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी। ऐसे ही है चीज़ें बहुत। अब जैसे रमज़ान शुरू हुआ है चीज़ों के रेट इतने बढ़ गए हैं ना। अब पहले जो चीज़ हम फ़र्ज़ करें अगर 500 की खरीद रहे थे ना, अब वही चीज़ हमने 700 रुपये की ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। यानी कि रेट 100-200 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने, बजाय हालांकि रमज़ान में इनको रिलीफ देना चाहिए, चीज़ें कम होनी चाहिए, लेकिन रेट जो है ना बढ़ रहे हैं। सर सारी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में माह रमज़ान में गैर मुस्लिम सर जो गैर मुस्लिम है, मुस्लिम ममालिक नहीं है, वो बड़े बड़े स्टोर्स में ऐसे रैक पूरे पे लिख देते हैं 50% डिस्काउंट है मुसलमानों के लिए। ये जो तमाम इशियाँ हैं, जैसे खजूरें, एक मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे वो कहते हैं अगर $10 की हैं तो यहाँ पे हम $5 की देंगे माह रमज़ान में मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान में कहते हैं अगर $10 की हैं तो रमज़ान में मुसलमानों के लिए $20 की। ऐसे ही है, सही डबल दें। ऐसे ही है, क्योंकि मुसलमान को ज़रूरत है तो मुसलमान का खून भी पी जाओ। ऐसे ही ये हमारा ये अलमिया बन चुका है जी हमारे मुल्क। तो इसमें अब हम हुकूमत को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अवाम ही सर इस कदर मतलब अब क्या इनको कहें कि इनकी गैरत इस कदर मर चुकी है कि इनको खुद ही ख्याल नहीं आता। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला बस हुकूमत के साथ साथ अल्लाह इनको हिदायत दे। हज़रत कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सेहत भी ठीक है आपकी? क्या करते हैं आप? ये शॉप है हमारी। अच्छा, ये आपकी है? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज बजट अप्रूव होने जा रहा है असेंबली में, आपको लगता है कुछ आवाम की बेहतरी के लिए भी उस बजट में कोई बात होगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी, होगी इंशाल्लाह होगी। 3 माह का बजट है। अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह होगा। हाँ, अल्लाह पे यकीन रख के लोगों ने इनको वोट दिए हैं। अल्लाह पे यकीन, अल्लाह का यकीन दिखा के इन्होंने लोगों से वोट लिए भी हैं। अब उसमें ये कर क्या रहे हैं जी? बाहर आटा तकसीम हो रहा है, सफ़ेद पोश लोग आपके जैसे, मेरे जैसे और बड़े लोग हैं जी, मजबूरी में उस लाइन में लगे, और उस लाइन में लगने के बाद अपना 2-2 घंटे ज़ाया करने के बाद, घंटा ज़ाया करने के बाद आगे जाकर उनको पता लगता है कि आटा उनके लिए तो है ही नहीं, राशन उनके लिए तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब है ना उसको देना चाहिए। ऐसी है, एक उम्मीद दिखा के बाद में उसे ऐसे आगे से इनकार करके भेज देना, ये जुल्म है। जो हकदार है ना उसको हक मिलना चाहिए। हाँ, इस तरफ हो जाओ ना, इस तरफ थोड़ा हो जाओ। हाँ, उधर से लोग गुजर जाएंगे जी। जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह पे भी यकीन रखना चाहिए, अपने आप पे भी यकीन रखना चाहिए। खुद हम ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और हम ठीक नहीं होंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। पहले हम अवाम ठीक होंगे तो हुकूमत, हम ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ऐसी है। अब सर वो एक फल वाला जो है, जिसको पीछे से 300 का फल मिलता है मंडी से, आगे वो 600 रुपये का बेच रहा है, सरकारी रेट 400 रुपये है, मुझे ऊपर 200 नाजायज़ मुनाफा वो ले रहा है, उसको हुकूमत तो नहीं कह रही? नहीं, गलत कर रहा है, वो नाजायज़ मुनाफाखोरी खुद कर रहा है, और उससे मुतासिर भी हुकूमत नहीं हो रही, उससे मुतासिर आपके मेरे और उसके जैसा गरीब आदमी, गरीब हो रहा है। कोई वुज़रा या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसके पास नहीं, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब को पड़ेगा। ऐसी है। चलें, अल्लाह इनको हिदायत दीजिए, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये जी आज का शो था जो उसका सेंटर पॉइंट महंगाई था, लेकिन जो मेन टॉपिक था वो ये था कि आज बजट अप्रूव होने जा रहा है जी। उस बजट में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या पेश किया जाएगा, तरक्याती कामों के लिए बजट कितना मुख्तस होगा, सब्सिडीज़ के लिए बजट कितना मुख्तस होगा, और रोज़गार लोगों को जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए उसके लिए कितना बजट होगा। इस पे मेरे ख्याल से अवाम जो थे हमारे, या तो उनको आइडिया नहीं था, या जिनको आइडिया था भी उनको बेउम्मीदी और नाउम्मीदी इतनी ज़्यादा थी कि उनको था कि इस बजट में अवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले 4,480 अरब का जो बजट था, अगर उसमें अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। तरक्याती काम ठीक है, होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह तो इम्पैक्ट होता है तरक्याती कामों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपकी जो है मईशत पे,
लेकिन आवाम को रोज़गार ही नहीं मिलेगा। आवाम इसी तरह आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा और लाइनों में लगा के कहा जाएगा कि आटा ले लो या ये निगहबान पैकेज ले लो, और वो भी 2-2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब उनको पता लगेगा कि उनके लिए तो ये है ही नहीं, मायूस होकर जब वो वापस घर जाएंगे अपनी दिहाड़ी भी ख़राब करेंगे, अपने घर के काम भी ख़राब करेंगे, 3-3 घंटे लाइन में रोज़े में लग के मायूस होकर जब वापस जाएंगे, तो उस नाउमीदी में जो आवाम के दिल से हाय निकलेगी और जो बददुआ निकलेगी, जो लगेगी जी, वो अल्लाह उस बददुआ से आप सबको बचाए, उन सब हुक्मरानों को जिन्होंने ये प्लान बनाया जी। ये प्लान बनने से पहले भी हमने एक शो किया था और कहा था जी ये फ्लॉप 3 प्लान है। अवाम ये प्लान आपकी तरफ से नहीं चाहते हैं। कोई 1% अवाम भी हमारे उस पूरे शो में या आज तक जितने भी हमने शोज़ किए हैं उसमें ये नहीं चाहते कि इस तरह ट्रक में मुफ्त आटा तकसीम किया जाए या सस्ता आटा तकसीम किया जाए। वो यही चाहते हैं कि एक फिक्स रेट करके, सस्ता रेट करके दुकानों पे रख दें ताकि गरीब अमीर सारे ही उसी एक रेट पे एक ही किस्म का आटा ले सकें। बस यही अवाम चाहते हैं। लेकिन नहीं, हर दफ़ा ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि अवाम को सस्ता आटा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ दूसरी अवाम को महंगा कर दिया जाता है। ना सस्ता किसी को मिलता है और जो जिनके लिए महंगा किया जाता है वही गरीब अवाम जिनका लॉलीपॉप दे के सस्ता किया जाता है उसी को वहाँ से महंगा लेना पड़ता है। ये हर दफ़ा का निज़ाम है जी, पाकिस्तान में बन गया। पिछले रमज़ान भी ये हुआ, इस रमज़ान भी यही हो रहा है। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे पास ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।